Hello everyone. Today I'm going to teach you this chapter, The Necklace. ठीक है. The Necklace is a story of a lady, basically Mammy Matilda. Okay, Mrs. Matilda and his husband, Mr. Lysel, and her best friend, who was richer than her, named Mammy Forestier. This story is of at least 5 to 6 pages, and it's all about the change of personality of Matilda from a greedy one to a self-satisfied, hard-working lady. The way we also learned some messages from this story. I'll tell you side by side. Before that, let's start this chapter. The necklace. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. Here is a lady named Matilda. She was very pretty, young among the young ladies, and she had born as if through an error of destiny. ठीक है, मतलब उसे एक अमीर घर में पैदा होना चाहिए था, बट वो एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स में हो जाती है. मटिल्डा का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मटिल्डा इज invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. So she borrows a necklace from her friend and loses it. Now let's see what happens then. ठीक है, तो मैंने कहा कि अब ना उसे कोई उम्मीद थी, ना ही वह सुंदर महिलाओं में से एक थी जो मतलब वो सुंदर महिलाओं में से एक थी, बट भाग्य की गलती की वजह से क्लर्क के परिवार में जन्मी. अब उसके पास ना ही कोई दहेज था, ना ही आशाएं थी, ना ही विख्यात बनने, फेमस बनने का कोई वो था, ना ही कोई लव एंड ऑल दिस, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए था उसे. सो नीदर she had neither dowry nor hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. So उसने marry किया. She allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education, and she was simple but she was unhappy. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. What is the meaning of incessantly? She suffered incessantly means that continuously वो सफ़र की, वो जानबूझ के सफ़र करती थी, क्योंकि शी वॉज अ लिटिल बिट ग्रीडी, यू कैन से. ठीक है, वो उसका जन्म, उसको लगता था कि उसका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तथा ऐसे ऐशो आरामों के वस्तुओं को भोगने के लिए हुआ है, परंतु अपने घर की शाबी, अपनी घर की गरीबी देखकर, अपार्टमेंट की गरीबी देखकर, शाबी टूटी फूटी गंदी वॉल्स को देखकर और वो टूटी फूटी पुरानी कुर्सियों को देखकर, वो सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी, बहुत ही ज़्यादा. All these things tortured and angered her. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. जब वो खुद को बैठती थी अपने हस्बैंड के डिनर टेबल पर, अपने हस्बैंड के ऑपोजिट, तो जैसे ही टरीन जो डिलाइटेड एयर के साथ वो होता था, उसे खोलती और वो देखती, उसका हस्बैंड कहता, ओह द गुड पॉट पाए, मैं इससे अच्छा कुछ नहीं जानता. और तब उस समय वो एलिगेंट डिनर्स, सिल्वर डिशेस, शाइनिंग सिल्वर, एक्सक्विजाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, एक्सक्विजाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, इन सब के बारे में सोचती. शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered too so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. "Here," he said, "here's something for you." She quickly drew out
A printed card on which were inscribed these words: The Minister of Public Instruction and Madam George Ramfini ask the honor of Mem and Mummy Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that? But, my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there." She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theatre. It seems very pretty to me." He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" या सो उसका एक उसकी एक रिच दोस्त थी मटिल्डा की, फॉरेस्ट ईयर, ठीक है। वो एक स्कूल में थी, कॉन्वेंट में, जिसे वो जहाँ वहाँ जाना उसकी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अमीर थी और अगर वहाँ जाती तो हमेशा बहुत ही ज़्यादा रोती रहती वहाँ से वापस आके, और डिसअपॉइंटेड फील करती, ठीक है। देन डिसअपॉइंटेड फील करती। एक इवनिंग उसके हस्बैंड बहुत ही खुश इलेटेड आया, बियरिंग इन हैंड अ लार्ज एनवलप, और वहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ है। तो वो तुरंत प्रिंटेड कार्ड निकालती है, और इनविटेशन कार्ड था ऑब्वियसली, उसके ऑफिशियल कोई ओकेजन था। तो वो कहती, वो दुखी हो जाती है, वो कहती है, "मैं क्या पहनूंगी, तुम्हें क्या लगता है?" पर वो कहता है कि मेरी डियरी, पर मैं तो सोचा तुम बहुत खुश होगी, तुम कभी बाहर नहीं जाती, ओकेजन है और बहुत ही कम लोगों को ये अवसर मिलता है, और हम सेलेक्टेड लोगों को मिला है मुझे, और तुम वहाँ पे पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड देखोगी। तो कहती है, उसकी तरफ रेटेड आई से देखती है और डिक्लेयर करती है इम्पेशेंटली, "तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहनूंगी, ऐसे मैं क्या पहनूंगी?" तो वो कहता है, उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था, वो हकला के कहता है, "क्यों, जो वो ड्रेस जो हम थिएटर में जाते हैं पहनने के लिए, वो मुझे तो बहुत सही लगता है, वो पहन लेना।" अब वो साइलेंट होता है, स्टुपिडिफाइड होता है, जिसमें मैं शर्म के मारे और खड़ा होता है, और फिर अपनी वाइफ को रोते देखो, और फिर वो हकला के, "What is the matter? What is the matter?" तो by a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." He was grieved but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions. Something very simple." ठीक है. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing uh, with it an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." ठीक है। अब क्या होता है, बहुत ही वायलेंट एफर्ट से, मतलब बहुत ही गुस्से में थी, और उसने अपना गुस्सा, अपना एंगर कंट्रोल किया, और काम वॉइस में कहती है, अब रोते हुए अपने मॉइस्ट चीक से आंसू पोंछते हुए कहती है कि कोई नहीं, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, और इस वजह से ये तुम किसी और को दे देना, लेटर में किसी कलीग को, अपने किसी स्टाफ को, जिसकी वाइफ जो है बेटर आउटफिटेड हो मेरे से, ठीक है, मेरे कंपैरिजन में। तो फिर वो दुखी हो जाता है, पर फिर भी आंसर करता है, "ठीक है मटिल्डा, देखते हैं कौन सा, मतलब कितना एक सूटेबल कॉस्ट्यूम कितना कॉस्ट करेगा, जो समथिंग जो तुम बाकी ओकेजन्स में पहन सको और जो सिंपल हो।" तो वो कुछ सेकंड के लिए तो देखती है और सोचती है कि क्या बोलूँ ऐसा कि उसे गुस्सा भी ना आए लॉयसल को, और वो तुरंत मना भी ना कर दे, और एक फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन भी ना आए कि वो डर जाए, इकोनॉमिकल क्लर्क है फाइनली, आफ्टर ऑल वो। तो फाइनली वो कहती है हेजिटेटिंग वॉइस में, "मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट 400 फ्रैंक्स ओके रहेंगे, ओके रहेंगे।" तो वो कहती है, देन जो लॉइसल है थोड़ा पेल, शर्मसार, मतलब शर्मसार नहीं कहेंगे, वो थोड़ा पीला पड़ जाता है, मतलब कि वो सोचने लगता है, "ओ शिट्स, मैंने अगले समर में
अपने दोस्तों के साथ अगले समर में अपने दोस्तों के साथ, मतलब मैंने अगले समर्स के लिए वो पैसे बचा के रखे थे कि मैं कुछ हंटिंग पार्टीज ज्वाइन करूँगा। उतने ही पैसे बचा के रखे थे कुछ दोस्तों के साथ जो लाक्स शूट करने जाते थे संडे को। ठीक है, नेवरथलेस कोई नहीं, उसने कहा ठीक है मैं दे दूँगा तुम्हें 400 फ्रैंक्स, और पर प्लीज़ एक प्रेटी ड्रेस खरीद के लाना प्लीज़। The day of the ball approached, and Mimi Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a party-stricken look. I would prefer not to go to this party." अब वो दुखी होती है। अब वो क्यों दुखी होती है? लिसन, उसके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं होती टू अडॉर्न हर सेल्फ ऑन दैट बॉल कॉस्ट्यूम। इतना सुंदर कॉस्ट्यूम तो खरीद लिया 400 फ्रैंक्स का। वो ऑब्वियसली इकॉनॉमिकल क्लर्क हैं, इतने अमीर होते तो क्यों वो बेचारी दुखी होती। तो वो कहती है, कुछ भी नहीं कहती है। आई थिंक दिस इज द पेज, या ओके। नाउ she is vexed meaning is that ऐसे वो कहती है, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पहनने को ज्वेल नहीं है। लॉयसल कहता है कि बॉल का दिन आ जाता है और लॉयसल देखता है कि वो बहुत ही सैड, डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस रहती है। और नेवरथलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी। तब भी उसका हस्बैंड आता है एक इवनिंग और कहता है, क्या मैटर है, इतने दिनों से इतने स्ट्रेंजली क्यों बिहेव करी उस दिनों से। तो कहती है, मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है कि एडॉर्न करने के लिए कुछ भी, और आई शैल हैव सच अ पार्टी स्टिकन लुक। आई वुड प्रेफर नॉट, मैं पार्टी में नहीं जाती हूँ। ठीक है। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। She was not convinced. No, she replied, there's nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. Then her husband cried, how stupid we are. Go and find your friend Mammy Forestier and ask her to lend you her jewels. She uttered a cry of joy. It's true, she said. I had not thought of that. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Mammy Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, choose, my dear. She saw at first some bracelets, and a collar of pearls, and a Venetian cross of gold, and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, have you nothing more? Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this? Only this? Why, yes, certainly. मैं का मतलब बता देती हूँ। अब क्या होता है, अब वो रिप्लाई करता है लाइसल कि नेचुरल फ्लावर्स अडॉर्न कर लो खुद, मतलब पहन लो, वियर कर लो। इस सीज़न में बहुत ही मतलब चिक सॉफ्ट और अच्छे से मतलब अच्छे लगेंगे। तो वो बोलती है, सेकेंड जो पेज है वो गोइंग ऑन, हाँ या। तो वो कन्विंस नहीं होती है, बोलती है नहीं, मैं इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग नहीं लग सकती हूँ। ठीक है, इतनी भी ज़्यादा, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, में इतनी शर्मसार कुछ भी नहीं होगा दैन टू हैव अ शाबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ द रिच वुमेन। ठीक है। तो उसका जो हस्बैंड है वो फिर बोलता है, कितनी स्टूपिड हैं हम। ठीक है, जाओ अपनी फ्रेंड मैमी फॉरेस्ट्रियर से पूछ लो, अगर कोई तुम्हें ज्वेल दे सके तो, ज्वेलरी दे सके तो कहती है, अरे हाँ, सोच सकते, क्राई ऑफ जॉय, इट्स ट्रू, ये सच बात है। शी सेड, कहती है, आई हैड नॉट थॉट, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ, अब वो अपने दोस्त के साथ पास जाती है, पूरी अपनी दुख की कहानी बताती है। मैमी फॉरेस्ट्रियर अपने क्लॉजेट में जाती है, वेंट टू हर क्लॉजेट, टुक आउट अ ज्वेल बॉक्स। मैमी फॉरेस्ट्रियर went to her closet, took out a large jewel box, brought it, opened it, and said, choose, my dear. अब देखो, यहाँ पे हमें फॉरेस्ट्रियर का काइंड नेचर, जनरस बिहेवियर दिखता है, दैट क्योंकि शी डोंट वांट
Matilda to give her selective things and of her choice, and she wants that her friend chooses best of all of things and what pleases her. So she's good, मतलब a good friend. Then मटिल्डा चूज करने बैठती है, पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, फिर कॉलर ऑफ पर्ल्स देखती है, फिर वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड देखती है, फिर कुछ ज्वेल्स देखती है एडमायरेबल वर्कमैनशिप के, फिर वो कुछ ज्वेल्स भी ट्राई करती है ग्लास में जा जाकर, मतलब शीशे में जा जाकर देखती है, फिर हेजिटेट होती है बट डिसाइड नहीं कर पाती कि ले कौन सा छोड़े। तो वो पूछती है क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? तो बोलती है फर्स्ट बोलती है क्यों नहीं है, देखो अपने लिए जो तुम्हें मैं नहीं जानती ना कि तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगेगी। सो सडनली वो डिस्कवर करती है कि एक ब्लैक सेटिन बॉक्स रखा होता है जिसमें सुपर्ब नेकलेस होता है डायमंड्स का। सो अपने हैंड्स जो है उसके ट्रेम्बल करते हैं जैसे ही वो लेती है, मतलब उसको खाने लगते हैं, और फिर वो अपने थ्रॉट में गले में लगाती है और अगेंस्ट हर ड्रेस और उसे बहुत ही एक्सटैटिक लुक लगता है, सुंदर लुक लगता है। फिर पूछती है हेजिटेटिंग वॉइस में क्या एंग्जाइटी से फुल, क्या मैं तुम मुझे ये दे सकती हो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़? तो वो बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो फिर शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर, फिर वो गले लगती है, उसे एम्ब्रेस करती है पैशन से, ठीक है। फिर वो अपने ट्रेजर के साथ चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम अब हम। The day of the ball arrived. Mammy Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. ठीक है, यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स देख लो। मेमी लॉयसल की कैसी थी, मतलब लग रही थी एट द डे ऑफ द बॉल। सो शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, प्रीशियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय, एलिगेंट, प्रीशियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय, ठीक है। शी डांस्ड विद enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with three other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders the modest wraps that they had carried. The whole party clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. Loisel detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. Hailing the coachman, whom they saw at a distance, they walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found the one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. It took them as far as their door, and they went wearily up to the apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in glory. In her glory, suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. तो अब ये सब चलता रहता है। उस दिन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग और बहुत ही खुश रखती है वो। सभी लोग उसे नोटिस करते हैं, उसका नाम पूछते हैं ऑल एंड ऑल। फिर वो एंथुसियाज्म के साथ डांस भी करती है, बिल्कुल एकदम प्लेशर से इंटॉक्सिकेट होती है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही होती, सिर्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। और ये जो विक्ट्री बहुत ही कंप्लीट और स्वीट लगती है, उसे हार्ट है। उसके बाद वो 4 बजे के सुबह 4 बजे के करीब घर जाते हैं। उसका हस्बैंड जो था वो आधा अस्लीप होता है, हाफ अस्लीप होता है किसी एक लिटिल सैलेंस में मिडनाइट से ही। 3 अदर जेंटलमैन हुज वाइफ वर एन्जॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, ठीक है। वो फिर उसके शोल्डर्स के जैसे दुपट्टा जैसे होता है ना, रैप्स होते हैं जैसे फ़र्स के, वो मॉडेस्ट रैप्स उसकी कंधे पे फेंक देता है। एंड द कैरीड हुज, जिसकी पावर्टी जो है क्लैश करती है उसके एलिगेंसी बॉल कॉस्ट्यूम से, ठीक है। नाउ शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड by other women who were wrapping themselves in rich furs. So Loisel detained her. Loisel ने उसे रोका, बट वेट कहा कि मैं कैब बुला दे, आई एम गोइंग टू कैब कॉल अ कैब। वो जाती है, सुनती नहीं है और स्टेप्स रैपिडली और डिसेंडेड आगे बढ़ती जाती है स्टेप्स से, सीढ़ियों से। एंड जब स्ट्रीट में होते हैं उन्हें कोई कैरियज नहीं मिलता है। फाइनली वो एक मिलता है जो कि उन्हें कोचमैन जो है, जो वो कोचमैन को बुलाते हैं, जैसे वो एक डिस्टेंस पे देखते हैं। फिर वो थोड़ा रिवर की ओर जाते हैं, होपलेस और शिवरिंग। फिर उन्हें कोई एक और पुराना सा कैरियज दिखता है अराउंड दी, मतलब इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल। सो इट टुक देम देयर एज फार एज देयर डोर, मतलब उनके घर के दरवाजे तक ले जाते हैं और फिर वो अपने अपार्टमेंट में जाते हैं। सब कुछ ख़त्म हो चुका था।
सॉरी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट उसे अगली सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है।